नमस्कार दोस्तों, शांति ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्विज शुरू करते हैं। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि सही उत्तर के साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य भी बताऊंगा। प्रश्न 1. Volcan de Fuego, recently seen in the news due to an eruption, is located in which country? विकल्प A. Mexico, B. Panama, C. Guatemala, D. Honduras. सही उत्तर C. ग्वाटेमाला। व्याख्या Volcan de Fuego, volcano of fire, in Guatemala recently erupted, forcing tourists to quickly evacuate as burning rocks fell on its slopes. It is an active basaltic stratovolcano located in Guatemala and one of the most active volcanoes in Central America. The volcano overlooks the historic city of Antigua, along with two other major stratovolcanoes. Volcan de Fuego is part of the Central American Volcanic Arc, a chain of volcanoes extending from Guatemala to Panama. Guatemala is located on the Pacific Ring of Fire, making it prone to frequent earthquakes and volcanic eruptions. प्रश्न 2. Burevestnik missile has been developed by which country? विकल्प A. रूस, B. चीन, C. इज़राइल, D. जापान. सही उत्तर A. रूस। व्याख्या रूस की ब्यूरवेस्टनिक मिसाइल ने हाल ही में ध्यान आकर्षित किया जब शोध से पता चला कि इसकी उड़ान परमाणु संचालित प्रणोदन प्रणाली के कारण रेडियोधर्मी सामग्री का निशान छोड़ सकती है। ब्यूरवेस्टनिक, मीनिंग स्टॉर्म पेट्रोल, is a ground-launched, low-flying, nuclear-powered and nuclear-armed cruise missile developed by Russia. It is regarded as the world's first nuclear-powered cruise missile. The missile was among the 6 strategic weapons unveiled by Russian President Vladimir Putin in 2018. NATO designates the missile as SSC-X9 Skyfall. प्रश्न 3. The Sahariya tribe is primarily found in which states? विकल्प A. ओडिशा एंड झारखंड, B. मध्य प्रदेश और राजस्थान, C. छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना, D. गुजरात और महाराष्ट्र. सही उत्तर B. मध्य प्रदेश और राजस्थान. व्याख्या The Sahariya tribe was recently in the news when the president interacted with members of the tribe at Kuno National Park in Madhya Pradesh. The Sahariya are recognized as a particularly vulnerable tribal group, PVTG, in India. They are also known by names such as Seher, Ser, Savar, Saunar, and Sahara. The tribe primarily inhabits forest and village areas of Madhya Pradesh and Rajasthan. They generally live in separate settlements called Saharana, which consist of clusters of houses. प्रश्न 4. Indian National Center for Ocean Information Services, INCOIS, is headquartered in which city? विकल्प A. चेन्नई, B. हैदराबाद, C. बेंगलुरु, D. नई दिल्ली. सही उत्तर B. हैदराबाद.
व्याख्या भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इंकॉइस ने हाल ही में समुद्री क्षेत्रों को चल रहे अल नीनो स्थितियों के संभावित प्रभावों के बारे में सूचित करने के लिए विशेष अल नीनो बुलेटिन जारी करना शुरू किया है। INCOS was established as an autonomous body under the Ministry of Earth Sciences, MOES, and functions under the Earth System Science Organization, ESSO. इसे महासागर अवलोकन और अनुसंधान के माध्यम से समाज, उद्योग, सरकारी एजेंसियों और वैज्ञानिक समुदाय को समुद्री जानकारी और सलाहकार सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य है। The headquarters of INCOS is located in Hyderabad. प्रश्न 5 अंतराम इडुक्की recently discovered in the Western Ghats belongs to which group of organisms? विकल्प ए महापतंगा, बी मकड़ी, सी ड्रैगनफ्लाई, डी मेंढक। सही उत्तर ए महापतंगा। व्याख्या Researchers have discovered a new genus and species of tiger moth named Antaram idukki in the southern Western Ghats. It was discovered in Idukki district, Kerala. So far, the species is known only from the Idukki region. Tiger moths play an important ecological role as pollinators, especially for plants that bloom at night. They also serve as a food source for birds, bats, and other wildlife. प्रश्न 6 हाल ही में अरब सागर में खोजा गया एप्रिस्टुरस ड्रोन किस समूह के जीवों से संबंधित है? विकल्प ए कैट शार्क, बी डॉल्फिन, सी ऑक्टोपस, डी समुद्री कछुआ। सही उत्तर ए कैट शार्क। व्याख्या वैज्ञानिकों ने केरल के कोल्लम तट के पास अरब सागर में गहरे समुद्र में कैटशार्क की एक नई प्रजाति एप्रिस्टुरस ड्रोना की खोज की है। आम तौर पर अरेबियन स्लेंडर कैटशार्क कहा जाता है। यह शक्तिकुलंगरा बंदरगाह और वाडगे बैंक क्षेत्र के पास पाया गया था। यह प्रजाति एक विशिष्ट विकासवादी वंश का प्रतिनिधित्व करती है और प्रशांत महासागर और न्यूजीलैंड के कैटशार्क से निकटता से संबंधित है। इसे अत्यंत दुर्लभ माना जाता है और इसका कोई व्यावसायिक मत्स्य पालन मूल्य नहीं है। प्रश्न 7 हाल ही में किस संस्थान ने पहली बार ब्लू स्विमर क्रैब पोर्टुनस रेटिकुलटस खेती तकनीक का प्रदर्शन किया? विकल्प ए आईसीएआर केंद्रीय समुद्री मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान ICRCMFRI, बी आईसीआर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर ICRCIBA, सी आईसीआर केंद्रीय अंतर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ICRCIFR। सही उत्तर बी आईसीआर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर ICRCIBA। व्याख्या आईसीआर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर चेन्नई ने भारत में पहली बार ब्लू स्विमर केकड़ा पालन तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। नीला तैराक केकड़ा ब्रैचुरन केकड़ों के पोर्टुनिडे परिवार से संबंधित है। इसे नीला केकड़ा, फूल केकड़ा या नीला मन्ना केकड़ा भी कहा जाता है। इस प्रजाति की पहचान तैराकी के लिए उपयोग किए जाने वाले चप्पू जैसे पिछले पैरों और इसके आवरण के साथ 9 रीढ़ों से होती है। भारत में यह पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर पाया जाता है, विशेषकर पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में। यह बाइवाल्व्स
मछली और मैक्रोएल्गे पर भोजन करता है और आम तौर पर रेत या मिट्टी में दबा रहता है। प्रश्न 8। अंबुबाची मेला मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? विकल्प ए असम, बी सिक्किम, सी मेघालय, डी पश्चिम बंगाल। सही उत्तर ए असम। व्याख्या। अंबुबाची मेला पूर्वी भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। यह हर साल मानसून के मौसम में, आम तौर पर जून में, असम के कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। यह मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है और तांत्रिक शक्तिवाद का एक प्रमुख केंद्र है। यह त्योहार देवी की वार्षिक मासिक धर्म अवधि का प्रतीक है, जिसके दौरान मंदिर भक्तों के लिए बंद रहता है। अंबुबाची मेला उर्वरता, मानसून के आगमन और प्रकृति की पुनर्योजी शक्ति का प्रतीक है। प्रश्न 9। कौन सा बंदरगाह भारत में सतत समुद्री विकास के लिए एक मॉडल के रूप में उभरा है? विकल्प ए दीन दयाल बंदरगाह, बी पारादीप बंदरगाह, सी अवीओ चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण, डी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण। सही उत्तर सी वीओ चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण। व्याख्या। वीओ चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण, तमिलनाडु, भारत में सतत समुद्री विकास के लिए एक मॉडल के रूप में उभरा है। इसकी पहली स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा बंदरगाह की ऊर्जा खपत के लगभग 94% की भरपाई करती है। बंदरगाह ने पिछले 4 वर्षों में अपने शुद्ध कार्बन उत्सर्जन में लगभग 45% की कमी की है और प्रति टन कार्गो में कार्बन की तीव्रता लगभग आधी कर दी है। वीओ चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण ने एक प्रमुख बंदरगाह पर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना शुरू की और इसे स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त बंदरगाह के रूप में मान्यता दी गई। पोर्ट ने पोर्ट जीपीटी लॉन्च किया, जो एंटरप्राइज ग्रेड जनरेटर एआई मोबाइल एप्लीकेशन के साथ भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया। प्रश्न 10। नेफेक्स.इन ई नीलामी पोर्टल किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? विकल्प ए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नेफेड, बी भारतीय खाद्य निगम एफसीआई, सी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, डी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा। सही उत्तर ए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नेफेड। व्याख्या। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नेफ्ट ने कृषि वस्तु व्यापार में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार के लिए अपना ई नीलामी पोर्टल नेफेक्स.इन लॉन्च किया है। नेफेक्स.इन को सहकारी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी संचालित सुधारों को मजबूत करने, तिलहन और दालों की नीलामी के लिए एक डिजिटल मंच प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। पोर्टल का उद्देश्य किसानों, सहकारी समितियों और अन्य हितधारकों के लिए नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, संचालन में आसानी और दक्षता में सुधार करना है। नेफेक्स.इन के साथ नेफ्ट ने कल्याण छात्रवृत्ति योजना, दृष्टि पोर्टल और एक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) पोर्टल लॉन्च किया।